Hello friends, how are you? Hope you all are good and doing well. आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम जो है इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं और आज का जो है टॉपिक जो है फाइनेंस से रिलेटेड होने जा रहा है। द हेडलाइन इज वेलकम बाउंटी। सो हम लोग जो इस वीडियो में आरबीआई के स्टेप्स जो लिए हैं रिसेंट में बोर्ड मीटिंग में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। द आरबीआई ट्रांसफर ऑफ सरप्लस शुड हेल्प नेक्स्ट गवर्नमेंट स्टार्ट कॉन्फिडेंटली। सो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल that tells about the RBI's steps for the transfer of some good amount of fund for the next incoming government, new government. Let's see who will form the government after 4th June this year, and for that we are preparing, and election is going on in the final phase. So let's see the decision by the Reserve Bank of India's board to transfer a record surplus of almost 2.1 lakh crore to the Union government for 2023-24 will serve as a welcome shot in the arm for the new government when it presents इट्स बजट इन जुलाई। सो इस आर्टिकल में जो है 2.11 लाख करोड़ जो है इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने की बात कही जा रही है, जिससे जो है न्यू जो गवर्नमेंट बनाएगा, जो भी हो, कोई भी पार्टी हो, इंडिया ब्लॉक बनाए या बीजेपी बनाए, कोई भी बनाए, उसके लिए एक अच्छा सा सरकार चलाने के लिए एक फंड जो है सरप्लस फंड अवेलेबल होगा। ठीक है, मोर देन डबल। How much this fund will be? 2.1 lakh crore. That is sufficient, more than the double the previous year's fund, 87,416 crore payout, as well as the 1.02 lakh crore dividend comes surplus receipts from the banking and financial systems. And RBI that was penciled into the interim union budget for 2024-25. The transfer should give the next finance minister a fair bit of elbow room when computing the spending and fiscal math. So this fund, surplus fund for the new government and the finance minister will provide a sufficient space to decide how much spending, where to spend, how to plan a budget, financial year, and all the fiscal related calculations, that is business of the government. The surge in transferable surplus reflects the prudent asset management approach adopted by the Indian Central Bank at a time of lingering global uncertainty and widespread policy tightening by the central banks worldwide seeking to restore price stability. तो ये स्टेप जो है आरबीआई का उस समय आ रहा है जबकि जो है ग्लोबली जो है फिजिकल टाइटनेस फील की जा रही है। पूरा चाहे वो हमारे देश की सेंट्रल बैंक हो या दूसरे इकोनॉमी हो विश्व की, उनके सब जगह जो है एक अनसर्टेनिटी ग्लोबली फील हो रही है। और जहां टाइट सीट पॉलिसी बनाई जा रही है, एकदम जो है नापतोल के खर्चे किए जा रहे हैं, वहां उस माहौल में उस टाइम ये जो आरबीआई का सेंट्रल बैंक फॉर आवर कंट्री एक बड़ा स्टेप है, एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है। While the specifics of the RBI 2023-24 balance sheet will be known in the coming days, clearly a combination of substantial gains from higher interest income earned on its holdings of overseas securities and the gains from its interventions in the foreign exchange market to smoothen volatility in the rupees moves must have contributed in swelling the surplus. तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई ये सरप्लस जो है अमाउंट कहाँ से
आ रहा है, कैसे इतना अच्छा अमाउंट मिल जा रहा है। तो ये जो है इट रिफ्लेक्ट्स द प्रूडेंट एसेट मैनेजमेंट अप्रोच, मतलब एक आरबीआई का एक अच्छा खासा एक सोचा समझा हमारा जो एसेट मैनेजमेंट प्लान के वजह से ऐसा हो रहा है। प्रूडेंट मैनेजमेंट है आरबीआई का, ठीक है, adopted by the central government at a time of lingering global uncertainty and widespread policy tightening by the central bank worldwide. While the specifics of the RBI's balance sheet will be known in the coming days, अभी तो हमें पता नहीं है कि पूरा बैलेंस शीट का क्या हुआ है, लेकिन कमिंग डेज में पता चल जाएगा। And it is assumed that it is a clear combination of substantial gain from the higher interest income earned on its holding of the overseas security. तो जैसे सेंट्रल बैंक ने जो ओवरसीज में आउट ऑफ द कंट्री जो दे रखे हैं, जो सिक्योरिटी दे रखे हैं, उस पर जो अर्निंग्स है, इंटरेस्ट अर्निंग है, उसका ये रिजल्ट है और गेन है फ्रॉम इट्स इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इसका जो रोल है, इसका जो बिजनेस है, उसका ये सरप्लस अमाउंट माना जा रहा है। ठीक है, and to smoothen volatility in the rupees move must have contributed in the swelling surplus, right? तो ये जो आरबीआई का बिजनेस आइडिया है, जो बिजनेस कर रही है फॉरेन में, दूसरे कंट्रीज में, जो सिक्योरिटी के रूप में हो चाहे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हो, उससे ये जो है बहुत बड़ा चढ़ा जो सरप्लस मिलने रहा है, वहां से उम्मीद किया जा रहा है। The weekly statistical supplement shows that as on March 29, total foreign exchange reserves had increased by $67.1 billion over the course of 12 months to $645.58 billion. तो ये जो है, जो वीकली स्टेटिस्टिकल डेटा है, वो बताता है कि जो है मार्च 29 को जो है टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितना से बढ़ गया, हमारा जो $67.1 बिलियन बढ़ा है, जो कि अब प्रेजेंटली कितना हो गया है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $645.58 बिलियन। सो ये दिस पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि ये जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा रिजर्व्स है इतना हो गया है $645.58 बिलियन, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट about the foreign exchange reserves. The RBI's prudence has also extended to the crucial provisioning done under the contingent risk buffer. So ये जो है contingent risk buffer जो होता है, जो कि इमरजेंसी में कभी कंटीजेंसी हो जाए उसके लिए ये बनाया गया है। तो ये जो है has also extended to the crucial provisioning done. तो ये हमारा आरबीआई का जो मैनेजमेंट है, जो सोचा समझा एक स्टेप है, वो जो है ये सीआरबी को भी सीआरबी के अंतर्गत किया गया है, वेयर इट हैज रेज्ड द लेवल ऑफ फंड्स सेट असाइड टू कवर फॉर एनी अनफोर्सिन कंटीजेंसीज एंड रिस्क टू द इकोनॉमी। कोई भी यदि कोई अनफोर्ड कंटीजेंसी हो, इमरजेंसीज हो, और कोई हमारे नेशनल इकोनॉमी को कोई रिस्क हो रहा हो, उसके तहत जो है सीआरबी के अंतर्गत जो है ये किया गया है। By raising the level of provisioning by 50 basis points to 6.5% of its balance sheet size for 2023, the central bank has clearly signaled its increased confidence in the health of the domestic economy, even as it strengthens the buffer against any sudden threats to stability from unexpected developments in the global financial system. So ये 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होकर के 6.5% हमारा बैलेंस शीट जो है बढ़ा है। तो ये 2023-24 के लिए तो सेंट्रल बैंक जो है क्लियरली बता दिया है, सिग्नल किया है कि इट्स इंक्रीज, दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई इन द हेल्थ ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। हमारे इसका ये मतलब है, सिग्नल ये हो रहा है कि हमारे जो डोमेस्टिक इकोनॉमी का हेल्थ जो है स्ट्रांग हो रहा है, अच्छा हुआ है, और यही इसीलिए इन्होंने जो है ये 50 बेसिस पॉइंट से ये जो है बढ़ाया हुआ है बैलेंस शीट में। ठीक है, फॉर द न्यू गवर्नमेंट दैट विल अज्यूम ऑफिस आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ द ऑनगोइंग जनरल इलेक्शंस आर डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून। तो हमारे 4 जून को जो हमारे इलेक्शन चल रहा है उसका रिजल्ट आ जाएगा, और हमारी न्यू इनकमिंग गवर्नमेंट जो बनेगी उसके लिए जो है ये काफी अच्छा होगा। जो भी गवर्नमेंट बनाएगा
the bountiful surplus transfer from the RBI will give it an opportunity to raise capital spending, so that government will have good surplus fund from the RBI, and this will give an opportunity to that government to raise capital spending. तो मतलब हम इतने फंड से तो कोई भी अच्छा बिजनेस हो सकता है, कोई गवर्नमेंट के पास इतना सरप्लस फंड आ जाए तो दैट गवर्नमेंट कैन प्लान इन ए वेरी वेल मैनर, राइट। तो इससे फायदा होगा, अच्छे से प्लानिंग होगी, अच्छे से हमारे देश का अपना खर्चा या जो एक्सपेंडिचर है वो बन सकता है, चल सकता है। एंड especially at a time when the key engine of private consumption expenditure is still in search of sustained tailwinds। तो हमारा एक्सपेंडिचर प्राइवेट कंजम्पशन का तो भाई चल ही रहा है। द अपॉर्चुनिटी टू use some of the additional bonanza to bridge the fiscal gap can also help strengthen the government's finances and reassure investors of its commitment to the fiscal consolidation roadmap। So this additional bonanza or fund will help the government to bridge the fiscal gap। मतलब fiscal gap, fiscal deficit, you know that fiscal gap for a certain period of time there is a difference in the expenditure and the revenue। so fiscal gap हो गया, और deficit भाई net हमारा जो डिफरेंस है वो डेफिसिट हो गया। यदि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो हमारा डेफिसिट में हमारा जो है बैलेंस शीट हो गया। एंड रीअश्योर इन्वेस्टर्स ऑफ इट्स कमिटमेंट टू द फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप। सो यदि अच्छा दिस विल हेल्प द गवर्नमेंट टू प्लान एंड ब्रिज द गैप, जो डिफरेंस है, मतलब दिस विल हेल्प इन मैनेजिंग द फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल गैप। मीन्स इफ यू the surplus amount is there, then the expenditure can be more, and this will certainly bridge the differences in the fiscal। so RBI has in its own quiet way paved the path for the next government to start with confidence in the resilience of the economy। so RBI ने एक अच्छा रोल प्ले किया है यहाँ एक सरप्लस फंड दे करके, जिससे कि कमिंग गवर्नमेंट को बहुत स्मूथली जो है इकोनॉमी को ले जा सकती है। और दिस विल बी गुड फॉर द कमिंग न्यू फाइनेंस मिनिस्टर टू हैंडल द फिस्कल ऑफ द इकोनॉमी इन ए गुड वे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा, इस आर्टिकल को समझने में, एक्सप्लेनेशन से कुछ आपको कुछ हेल्प मिला होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो है नए नए वीडियो लाते रहेंगे और आपसे बातें करते रहेंगे। तो आप लोग भी हमसे बातें कीजिए, आप बताइए कि जो है वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें, और आपको कैसा वीडियो दे सकते हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए। सो थैंक यू।